A very warm welcome to all the viewers. The topic for today is disorders of GIT. In this topic, we will study about the various infections that occur in our gastrointestinal tract. We will also study about jaundice, diarrhea, constipation, indigestion, and few two other important things about protein energy malnutrition, that is marasmus and kwashiorkor. So let's begin first with the infections. The most important and the most common infections that occur in human digestive tract is about the virus and the bacterial infections. So they cause inflammation in the lining of the mucosa of our digestive tract. So the most common infections are mostly about the virus, that is rotavirus. We know about the virus that is called as rotavirus. Rotavirus, 1 minute, I will take my pen. Yeah, got the style. So the bacteria that is rotavirus, it is responsible for many diseases that leads to diarrhea and other things. So we have to remember this. Mostly affects in children, rotavirus, and also norovirus and all. It affects in mostly in adults. So these are related to the digestive tract. Bacteria, Clostridium botulinum. It is Clostridium botulinum. So these bacteria, it causes food poisoning. It is related to the food poisoning that occurs in humans. So we are also remember that not only these bacteria and virus, they are also affected by various other parasites that are found in our human intestine. Mm, the members of the animal kingdom, such as the tapeworms and the roundworms, mainly they are related to the phylum Platyhelminthes and Aschelminthes, such as tapeworm, roundworm, threadworm, hookworm, and pinworm. They also affect the human digestive system, and mostly in the intestine area. So the next order, that is jaundice. The next is jaundice. In this, the liver gets affected. Most common if hepatitis or due to any faultiness in the liver, jaundice can be caused. It is occurs due to deposition of bile pigments in skin and in eyes. So they turn yellow. जॉन्डिस को हिंदी में पीलिया भी कहा जाता है, तो यानी कि सब पीला कलर का, येलो कलर का हो जाता है। जैसे कि हमारा स्किन हो गया, जो स्क्लेरा ऑफ द आई होता है वहां से वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण वो येलो कलर का होता है। तो बिलिरुबिन और येलो कलर का होता है, जो कि एक पिगमेंट है दैट इज फाउंड इन द बाइल, दैट इज सिक्रेटेड बाय द लिवर। तो लिवर से रिलेटेड ये डिजीज है, दैट्स व्हाई इट इज कॉज्ड ड्यू टू प्रॉब्लम्स दैट आर क्रिएटेड इन द लिवर। है ना। तो लिवर और गॉल ब्लैडर के डिजॉर्डर्स को बढ़िया से होने नहीं देना है। अगर ये हो गया तब फिर देयर चांसेस फॉर जॉन्डिस। ठीक है। हेपेटाइटिस जो हो जाएगा तो उसमें तो ज़रूरी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है पेशेंट्स तो जॉन्डिस से। तो याद रखना, जॉन्डिस इज येलोइश और ग्रीनिश पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन एंड वाइट एरिया ऑफ द आईज। तो इसमें सिम्टम्स क्या, इचनेस हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन, है ना। तो जो साइंस दिख रहा है दैट इज द येलोनेस ऑफ द कलर, को पेन वगैरह ये सब भी सिम्टम हो सकता है, जैसे कि एब्डोमिनल पेन हो गया, वेट लॉस हो गया, लिवर नहीं काम कर रहा है, तब पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिसफंक्शन हो जाएगा। क्योंकि लिवर ऐसा ऑर्गन है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 500 से भी ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कंडक्ट कराता है। तो उसमें कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वेट लॉस, है ना, हो सकता है, वोमिटिंग और फिर स्टूल प्रॉब्लम भी हो सकता है, जो कलर वगैरह उसमें चेंजेस आ सकते हैं, बॉल मूवमेंट्स में चेंज आ सकता है, हैबिट में चेंज आ सकता है ना। जो बाथरूम है एक दो ज़्यादा कम ज़्यादा भी हो सकता है, फैटिग हो जाएगा, कम वीकनेस होने लगेगा और डार्क यूरिन वगैरह भी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो क्योंकि ब्रेकडाउन प्रोडक्ट बिलिरुबिन का स्टर्कोबाइलिनोजन होता है जो कि स्टूल में देखा पाया जाता है, और यूरोबाइलिनोजन होता है जो कि यूरिन में पाया जाता है। तो दोनों का कलर वगैरह में चेंजेस तो आना लाजमी है।
Okay, so we have to remember that bile is a waste product and it is a breakdown product of RBC. RBC जब टूटता है तो बाइल बनता है, बिलीरुबिन बनता है जो कि पिगमेंट फाउंड इन बाइल, और बिलीरुबिन ही पिगमेंट है जिसका फर्दर ब्रेकडाउन होता है बॉडी में, जो कि स्टूल में पॉटी में जाता है तो वो स्टर्कोबाइलोजन कलर होता है, और यूरिन में सुसु में जाता है तो वो येलोइश कलर देता है। तो इसी दोनों में अगर लिवर में ही चेंज आ गया, बाइल में ही चेंजेस आ गए, डिस्टर्बेंस हो गया, तो ऑटोमेटिकली दोनों का कलर वगैरह में चेंजेस आएगा ही। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो कॉजेस क्या हो जाएगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है, और या फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट हो गया, या फिर बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया जिससे कि ऑब्स्ट्रक्शन जॉन्डिस भी कहा जाता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह का डिपॉजिट होने लगा जिसके कारण कि गॉल ब्लैडर में जाम हो गया। गॉल ब्लैडर में क्या हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया। यहाँ पे गॉल ब्लैडर ट्रैफिक जाम हो जाएगा तो सब यहाँ पे डिपॉजिट वगैरह जमा होने लगेंगे, और फिर जिसके कारण कि बाइल ज़्यादा नहीं जा पाएगा, और फिर जो गॉल ब्लैडर में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स के माध्यम से बाइल चला जाएगा, फिर बाइल ब्लड वेसल्स के माध्यम से बॉडी में वगैरह में फैल जाएगा, तो जिसके कारण कि जॉन्डिस हो जाएगा। और ये ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, एक रुकावट के कारण आया, जैसे कि स्टोन फॉर्मेशन हो गया गॉल ब्लैडर में, तो रुकावट हो गया, तो इट इज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो दिस विल बी कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहा जाएगा। ठीक है, और भी रीजंस हो सकते हैं जैसे कि हिमोलाइटिक अनीमिया, जिसमें कि बहुत डैमेज हो जाता है डब्ल्यूबीसी का ऑटोमेटिक डैमेज होगा तो बिलीरुबिन भी ज्यादा हो जाएगा, तो येलोनेश पूरे बॉडी में दिखेगा। गिलबर्ट सिंड्रोम भी होता है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है इससे बचने का तरीका, तो क्या है, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन वगैरह जरा है, वायरस वगैरह, ये सबसे इससे बच के रहना है। क्लीनलीनेस एंड कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक, ये सब नहीं पीना, कंटामिनेटेड वाटर फूड ये सब नहीं खाना है। साफ सफाई हाइजीनिक फूड हमेशा इनटेक करना है। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। ठीक है, और अल्कोहल लिमिट्स में पड़ना ताकि लिवर सही सलामत रहा। ज़्यादा अल्कोहल लेने से लिवर सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाता है। क्या होता है, सिरोसिस ऑफ लिवर। तो लिवर सिरोसिस से भी बचाना होता है। ठीक है, तो एक्सेस हो जाएगा तो क्या होता है, सिरोसिस ऑफ लिवर। ठीक है, या फिर फॉल्टी लिवर भी हो जाता है। तो ठीक है, फाइबर हो जाता है, फाइब्रोसिस ऑफ द हेपेटोसाइट्स। तो उसमें फाइबर्स का एक्लमेशन ज़्यादा होने लगता है, और बहुत ज़्यादा एक्लमेशन हो जाएगा। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज आ जाएगा जो कि हेपेटोसाइट्स डैमेज हो जाएगा, जिसको कि सिरोसिस ऑफ लिवर कहा जाता है। ठीक है, हेल्दी वेट मेंटेन रखना है। ठीक है, डाइट प्रॉपर लेते रहना है, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करते रहना है। ठीक है, मैनेज योर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्म अपना रखना है ना। ज़्यादा फैटी डाइट, ज़्यादा लिपिड ऑयली चीज़ नहीं खाना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो मेनली ये सब प्रॉपर इंटेक किया जाएगा। फूड इंटेक से, डाइट से फिर ये कंट्रोल किया जाता है, और भी जो इसके साथ जो मेडिसिन वगैरह है वो दिया जाता है ना। बच्चे वगैरह में हो जाएगा जिसे नियोनेटल जॉन्डिस कहा जाता है। एक ट्रीटमेंट होता है, यू शुड नो, दैट इज वेरी मे बी फर्स्ट टाइम यू वुड हैव हर्ड, दैट इज ब्लू लाइट फोटोथेरेपी। तो ब्लू लाइट फोटोथेरेपी किया जाता है, जो कि ब्लू लाइट इट ब्रेक्स डाउन द बिलिरुबिन इन द ब्लड, तो ताकि जो इन्फेंट है ना एक्सेस बिलिरुबिन को एक्सक्रीट कर सके, बाहर यूरिन के माध्यम वगैरह से चला जाए या स्टूल के माध्यम से चला जाए। अदरवाइज ज़्यादा एक्लमेशन हो गया बॉडी ब्रेन में अगर हो गया एक्यूमुलेशन बिलिरुबिन का, तो इट कैन कॉज परमानेंट ब्रेन डैमेज, जिसको कि कर्निक टेरस कहा जाता है। ब्रेन डैमेज को कर्निक टेरस कहा जाता है, और तो डेथ भी हो सकता है। तो इसलिए बचने के लिए ब्लू लाइट फाइटोथेरेपी वगैरह दिया जाता है बच्चे लोगों में। बच्चे लोगों को जॉन्डिस को क्या कहते हैं, नियोनेटल जॉन्डिस। तो दिस इज अबाउट द जॉन्डिस। ठीक है, वॉमिटिंग के बारे में जान लीजिए। वॉमिटिंग क्या है, जो सब जानते हैं, जो भी हमारा स्टमक का कंटेंट है जो भी है वो इजेक्शन के थ्रू है ना, स्टमक के माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है, क्योंकि कुछ इरिटेशन हमारे लाइनिंग ऑफ म्यूकोजा में इरिटेशन वगैरह फील हुआ, कुछ उसको गड़बड़ी लगा, जिसके कारण की रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। और ये इसका सेंटर कहाँ होता है, मेडुला ऑफ द हाइंड ब्रेन। मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारा हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, वहाँ पे वॉमिट सेंटर प्रेजेंट होता है। तो ये याद रखना है क्या होता है, वॉमिट सेंटर। ठीक है, फिर क्या है, फीलिंग ऑफ नोजिया इट प्रीसीड्स वॉमिटिंग। नोजिया
नौजिया क्या होता है, जो कि ऐसा लगता है ना, फीलिंग आने लगता है कि उल्टी होने जा रहा है, उल्टी हो जाएगा ऐसा। तो जो वॉमिटिंग के पहले वाला जो फीलिंग आ जाता है, फीलिंग सेंसेशन हमारा वॉमिट सेंटर वगैरह बता देता है, तो उसे नौजिया कहा जाता है। व्हाट इज कॉल्ड नौजिया, NAUSEA। तो उल्टी जैसा लगना जो बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नौजिया। और उल्टी हो गया तो फिर तो वॉमिटिंग कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है। फिर जैसे कि इसका मेन कारण वगैरह क्या हो जाता है, जैसे कि जो मेन हमारा बॉडी का जो रिएक्शन होता है ना, तो वो हमारे हार्मफुल प्रोडक्ट से बाहर फेंकने का ये एक हमारा रिएक्शन होता है। इट इज ए रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू रिमूव ऑल द हार्मफुल इरिटेंट्स जो हमारे गट में आ गया। तो जो हमारा अल्कोहल जैसे हो गया, वो भी लाइनिंग ऑफ स्टमक म्यूकोजा को भी हार्म पहुंचाता है, तो उसके कारण भी कब उल्टी हो सकता है ड्रिंक करने के बाद। कुछ चोट लग गया, इंजरी हो गया हाइंड ब्रेन में, मेडुला वगैरह उस एरिया अगर में चोट लग गया तो उसके कारण वॉमिट सेंटर वगैरह गड़बड़ आ गया, तो उसके कारण उल्टी हो सकता है। पॉइजन वगैरह खा लिया तब भी उल्टी हो जाता है ना, इरिटेट हो जाता है हमारा स्टमक। या फिर प्रेगनेंसी में भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वगैरह रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी हमारा जो वॉमिट सेंटर वगैरह है उसमें भी गड़बड़ी आ जाती है, जिसके कारण कि प्रेगनेंसी में भी वॉमिटिंग वगैरह देखने को मिलता है। तो कैसे हम लोग वॉमिटिंग से बच सकते हैं, तो सिंपल चीजें हैं। तो जो भी अगर उल्टी जैसा लग रहा है तो वो चीजें को अवॉइड करना है, स्पेशली 20 से 15 मिनट्स पहले तो ये सब एकदम नहीं खाना है, जो चीज़ें से आपको रिएक्शन वगैरह हो रहा है, जो आपको लग रहा है अनपच हो जा रहा है, जिसके कारण जो आपके स्टमक के लिए इरिटेंट होंगे। ठीक है, तो फिर स्टमक अपसेट हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा लिक्विड इंटेक मेंटेन रखना है, क्योंकि लिक्विड कंटेंट का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, इसलिए 5 to 10 मिनट्स तक एवरी 5 and 10 मिनट्स पे लिक्विड इंटेक थोड़ा थोड़ा सिप बाय सिप करते रहना चाहिए। ठीक है, तो रेस्ट वगैरह भी लेना चाहिए। ठीक है, एंड ब्रैड डाइट मतलब BRAT, ब्रैड डाइट। B स्टैंड्स फॉर बनाना, R फॉर राइस, A फॉर एप्पल एंड T फॉर टोस्ट, ब्राउन ब्रेड वगैरह। तो ये डाइट यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को ले सकते हैं। नेक्स्ट इज के अबाउट द नॉर्मल डाइट वंस यू कीप द फ्रूट्स एंड ब्लेंड डाउन। तो जब भी हमारा ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद नॉर्मल डाइट की ओर धीरे धीरे अग्रसर होते जाना है ना। मेडिकेशंस की अगर ज़रूरत है तब मेडिकेशन दिया जाता है पेशेंट वगैरह को। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, नोजिया वगैरह को रोकने के लिए एवोमिन वगैरह बहुत यूज़ किया जाता है, वोमिटिंग, क्योंकि मोशन सिकनेस, मूवमेंट के जो कि मूव कर रहे होते हैं, यहाँ से वहाँ कोई ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उसके कारण बहुत लोगों को उल्टी हो जाती है, तो वो मोशन सिकनेस उसे कहा जाता है। उनमें पेशेंट लोगों में एक मेडिसिन एवोमिन वगैरह दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट डायरिया। क्या है डायरिया? डायरिया क्या है? डायरिया मतलब कि जो लिक्विड, जो हम लोग का स्टूल होता है वो लिक्विड अगर लिक्विडिटी उसका इंक्रीज हो गया तो उससे डायरिया कहा जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा स्टमक ज़्यादा जो खाना वगैरह होता है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। पानी जनरली क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली, और फिर थोड़ा बहुत लार्ज इंटेस्टाइन में भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर जो जो काइम बोला जाता है दैट इज गैस्ट्रिक जूस प्लस फूड, है ना। जो फूड हम लोग खाए हैं, फूड पार्टिकल्स मिलके उससे काइम कहा जाता है। तो काइम में से वाटर एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर ये एब्जॉर्प्शन में गड़बड़ी आ गया तो पानी रह गया काइम के अंदर, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर पानी रह गया, और वो पानी वाला फिर स्टूल बाहर की ओर चला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, इट इज इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज, है ना। जो हमारा एब्जॉर्प्शन है उसमें गड़बड़ी हुआ है। ठीक है, जनरली हमारा बॉडी के अंदर जो भी हम लोग इनटेक ले रहे हैं, जैसे कि एंजाइम्स हो गए, सलाइवरी, जो भी हमारा सिक्रीशंस है, जो भी ग्लैंड, जितने भी सबका सिक्रीशंस है, वो सब कुछ हम लोग जो सिक्रीट होता है इंटेस्टाइन में जब आता है तो इसको मोस्टली रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अगर बात किया जाए तो जैसे सलाइवा अप्रॉक्सीमेटली पर डे की बात हो रहा है, पर डे दे आर टॉकिंग अबाउट पर डे। तो ये इंजेक्शन मान लीजिए 2 लीटर के अप्रॉक्सीमेटली लिए, गैस्ट्रिक जूस भी 2 लीटर के अप्रॉक्स होता है, बाइल भी पर डे 1 लीटर, पैंक्रियाटिक जूस 2 लीटर्स पर डे, इंटेस्टाइनल जूस 1 लीटर पर डे। तो इतना अप्रॉक्सीमेटली टोटल
जो हमारा इंजेस्टेड या सिक्रेटेड कितना हो गया 9.3 लीटर्स के अप्रॉक्स। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन मोस्टली इसका सारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है, फिर थोड़ा बहुत जो बचता है फीसिस में वो लार्ज इंटेस्टाइन जो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद फीसिस फॉर्म होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में 0.9 लीटर होता है, यानी कि सब मैक्सिमम स्मॉल लीटर में ही हो जाता है, 8 लीटर के आसपास स्मॉल इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। थोड़ा बहुत जो पानी बचता है वो स्टूल के माध्यम से बाहर चला जाता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द जीआईटी, ठीक है ना। तो इस फीसिस में सिर्फ 0.1 लीटर का पानी रीअब्जॉर्ब होता है। तो अगर ये 0.1 लीटर से ज़्यादा पानी फीसिस में आ गया तो यानी कि उससे क्या कह देंगे, इससे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाएगा, तो उसे डायरिया के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। डायरिया में भी ब्रेड डाइट लिया जाता है ना, जो कि इम्प्रूव कर सकता है हमारा सिचुएशन, जैसे कि बनाना हो गया, राइस हो गया, पतला वाला राइस जो ना पानी वाला राइस वगैरह जो खाते हैं, फिर एप्पल सॉस वगैरह हो गया, टोस्ट वगैरह खाना है, ठीक है। और डिहाइड्रेशन हमेशा अवॉइड करना है, पानी पीते रहना है। और प्रोबायोटिक है ना, जो कर्ड वगैरह होता है, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, या लैक्टिक एसिड बैसिलस होता है, लैक्टिक एसिड बैसिलस ये यूजफुल बैक्टीरिया होता है, इसका भी इनटेक किया जाता है। फूड अगर कुछ स्पोरोलैक वगैरह प्रेजेंट होता है, जहाँ नाम पता सुना ही होगा, तो स्पोरोलैक वगैरह दिया जाता है। दे आर रिच इन लैक्टिक एसिड बैसिलस, तो उसके बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पोर्स होते हैं, वो दिया जाता है ताकि यूजफुल बैक्टीरिया हमारे सीकम वगैरह में वापस से रीग्रोथ कर सके और हमारा पूरा जो बॉडी का जो बॉयल मूवमेंट है वो प्रॉपरली हो सके, ठीक है। एक दिन में 3 या 3 से ज़्यादा हो रहा है तो उसे डायरिया कहा जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हो गया, 3 दिन से ज़्यादा हो रहा है, तो फिर डॉक्टर वगैरह को विजिट करना चाहिए। फिर प्रॉपर मेडिकेशंस दिया जाता है, जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया जाता है, जैसे कि नॉरफ्लॉक्सासिन हो गया, ठीक है। तो ये सब मेडिसिन वगैरह दिया जाता है, इससे प्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, ठीक है। तो जिस इन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स के कारण एंट्रोक्विनॉल हो गया, तो ये सब मेडिसिन दिए जाते हैं। अगर इनसे ठीक हो गया तो वो फ्लैजिल, अपना फ्लैजिल का अंदर कंटेंट क्या होता है, मेट्रोनिडाजोल। तो नॉरफ्लॉक्सासिन क्या होता है, नॉरफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए बहुत ही उसके खतरनाक होता है, उसके लिए नुकसान करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मार डालता है। तो मेट्रोनिडाजोल वगैरह भी दिया जाता है। तो ये बैक्टीरिया जो हमारे डिजीज कॉज कर रहा है उसको मेडिकेशंस के द्वारा हम लोग इसको मात दे सकते हैं। तो ये हो गया अल्टीमेट अपना लास्ट ट्रीटमेंट। ये लोपरामाइड हो गया है ना, लोपरामाइड वगैरह भी दिया जाता है। तो ये मेडिसिन याद रखना है डायरिया में, ठीक है। तो बेसिक आपको बस इतना याद रखना है, जो अभी फिलहाल तो इतना, तो इसका जो रीजंस होता है वो डायरिया में याद रखना है। जो एबनॉर्मल बाइल का मूवमेंट होता है, फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन घट जाता है उसके कारण, ठीक है। फिर कॉन्स्टिपेशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन में मतलब कि जो हमारा कड़क पॉटी जो होने लगता है, दिक्कत हो जाता है वॉशरूम वगैरह जाने में, 2-3 दिन से वॉशरूम नहीं जा रहे हैं, दिक्कत हो जाता है, बिकॉज feces they get retained in the colon, है ना, रेक्टम में या फिर कोलोन में वो रिटेन हो जाते हैं, और फिर उसके कारण जितना देर कोलोन में वो रहेगा उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होने लगता है। वाटर एब्जॉर्ब जो फीसिस होता है वो बहुत हार्ड वगैरह हो जाता है, क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसके कारण की बहुत दिक्कत होता है बॉवल मूवमेंट में, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या है, इट इज़ मोस्टली फाइबर रिच डाइट बहुत ज़्यादा खाना होता है, और नॉट ओनली जस्ट फाइबर्स, वी हैव टू इंक्लूड ऑल द डाइट्स दैट इंक्लूड द वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, सब कुछ खाना है ना, मिल्क वगैरह भी पीना है। जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो तो अलग ही चीज़ है, तो पनीर, छेना एंड ऑल वो सब चीज़ खाना चाहिए, ठीक है। बेली मसाज भी यूजफुल होता है ना। फिर ड्रिंकिंग है ना, वाटर तो हमेशा हाइड्रेशन मेंटेन रखना, 2 से 3 लीटर वाटर इनको खूब पीना चाहिए, ठीक हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी भी इम्प्रूव कर देना चाहिए, बिकॉज इट विल नॉर्मलाइज द वर्क ऑफ आवर इंटेस्टाइन। ऑयल इनटेक वगैरह ज़्यादा करना चाहिए, घी वगैरह भी रिकमेंड किया जाता है ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, है ना। कैस्टर ऑयल, जो पम्पकिन सीड से जो ऑयल होता है, लिनसीड से जो ऑयल बनते हैं, वो सब भी यूजफुल होता है इनटेक के लिए,
ठीक है। फिर इसके बाद तो अगर ठीक नहीं हो रहा है तो मेडिकेशंस वगैरह तो प्रेजेंट है ही, जो कि है ना, स्टूल सॉफ्टनर्स या लैक्सेटिव्स वगैरह दिया जाता है, जैसे कि डुल्फालैक वगैरह। तो ये सब दे आर वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू द पेशेंट्स जिसमें कि ये ज़्यादा हो गया है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मेडिकेशन से फिर वो ठीक किया जाता है। ठीक है। फिर इनडाइजेशन क्या हो गया? इनडाइजेशन मतलब कि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, यानी कि हमारा एंजाइम्स जो है ना वो सिक्रीट नहीं हुआ। जो हमारा एंजाइम्स है वो प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रहा। जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, गैस्ट्रिक एंजाइम है, जैसे पेप्सिन हो गया, HCl वगैरह हो गया, ठीक है, तो पैंक्रियाटिक जूस हो गया, इंटेस्टाइनल जूस वगैरह हो गया, तो इनके जो एंजाइम्स अगर सिक्रीट नहीं है प्रॉपर, हमारे डाइजेस्टिव जो जूसेस है ना, डाइजेस्टिव जूसेस अगर हमारा प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रहा है, तो हमारा खाना जो हम खाएंगे वो पचेगा नहीं। खाना नहीं पचने के कारण हमें लगेगा कि पेट भरा हुआ है ना, स्टमक फुल है, जो भी है इट विल गिव ए फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो खाना फुल रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग नहीं खाएंगे, तो ये हो जाता है हमारा इनडाइजेशन। और एंजाइम्स नहीं हो रहा है जिसके कारण की एसिडिटी, ये वो सब भी चीज़ें भी दिखने को मिल सकती है ना। प्रॉपर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो ये सब भी है ना दिखने को मिलती है ना। एसिडिटी को हार्ट बर्न वगैरह कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हार्ट बर्न, है ना। हार्ट बर्न कॉमन लैंग्वेज में, बट हार्ट नहीं जल रहा होता है। इसका एक्चुअल जनरल टर्म क्या बोलते हैं? इसे पायरोसिस। ठीक है, पायरोसिस। तो ये एसिडिटी वगैरह हमारा ज़्यादा HCl से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? HCl कंटेंट जो हमारे स्टमक में है उसमें। ठीक है। और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्रॉनिक डिजीज होता है जिसे GERD कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। व्हाट इज कॉल्ड? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। इसके अंदर जो हमारा अपर GIT ट्रैक्ट होता है, जैसे कि ये सपोज स्टमक है, तो अपर जो हमारा यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, अपर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसे कि कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। तो अगर ये खुल गया है ना, HCl के इरिटेशन वगैरह के कारण, ज़्यादा HCl कंटेंट हो गया, तो इसके कारण इरिटेशन होने के कारण ये ओपन अप हो जाएगा, फिर माउथ से निकल जाता है। तो इस एरिया में जहाँ पे हार्ट वगैरह प्रेजेंट है वहाँ पे जलन जैसा महसूस होता है। तो जलन कहाँ महसूस होता है? ईसोफेगस में। किस में होगा? ईसोफेगस में, स्टमक वाले एरिया, कार्डियक एरिया है ना, कार्डियक एरिया जो है, कार्डिया वाला एरिया एंड स्टमक का एंड ईसोफेगस। तो ईसोफेगस इस एरिया में जलन वगैरह महसूस होता है। तो एक्चुअल इसमें जलन महसूस होता है, ना कि हार्ट में, जो कि बोलते हैं दिल जल रहा है। तो हार्ट बर्न नहीं है वो, कॉमन लैंग्वेज में वो जो टर्म है वो यूज किया जाता है। ठीक है, हार्ट बर्न। एक्चुअल टर्म क्या है? पायरोसिस। ठीक है, तो ये यहाँ एसिडिटी से रिलेटेड है। दिस आई टॉक्ड अबाउट एसिडिटी। ठीक है, तो HCl का इसमें ज़्यादा सिक्रीशन हो जा रहा है, इसके कारण वगैरह एसिडिटी वगैरह को ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये फिर क्या है? इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में तो हमारा एंजाइम्स वगैरह से रिलेटेड है, तो ये याद रखना। फूड पॉइजनिंग हो गया, ओवर ईटिंग है ना, जल्दी जल्दी बहुत फास्ट फूड खा रहे हैं, जल्दी तेजी खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, ये स्ट्रेस है, एंजाइटी, एग्जाम है, ये है, स्पाइसी फूड खा ली, तो इसके कारण इनडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने बताया वो एसिडिटी से रिलेटेड है, हाइपर एसिडिटी, जो कि आपके बुक में नहीं मेंशन्ड है, तो ये आप लोग जान लीजिए। एसिडिटी पायरोसिस कहते हैं। दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, एसिडिटी के बारे में। चलिए, फिर क्या है कि अगर इंडाइजेशन को कैसे ट्रीट करिएगा, तो जो जंक फूड है, प्रोसेस फूड है, वो सब भाई नहीं खाना है ठीक से, है ना। एंड स्पाइसी फूड ये सब नहीं खाना है, जल्दी जल्दी नहीं खाना है, स्ट्रेस मिनिमाइज करना है, एग्जाम वगैरह हो कुछ भी, तो स्ट्रेस को मिनिमाइज करना है, अच्छे समय पे सोना है, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ। ठीक है, और ये एक साथ होना चाहिए, लगातार होना चाहिए ना, वन टेक में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वन टेक में, ये ना कि टुकड़ा टुकड़ा में होना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, प्लेंटी ऑफ ड्रिंक्स एंड ऑफ वाटर वगैरह भी यूजफुल है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स वगैरह है, जो भी, वो सबको रिमूव करने के लिए। और मेडिकेशंस वगैरह, ये प्राणायाम एंड योगा, दे आर ऑल्सो यूजफुल।
ठीक है। अगर कुछ फिर ठीक नहीं हो रहा है तो इंडाइजेशन के लिए फिर मेडिकेशंस वगैरह तो हमारे पास प्रेजेंट है ही, है ना, मेडिकेशंस वगैरह तो फिर प्रेजेंट है ही, ठीक है। मेडिकेशंस वगैरह में क्या दिया जाता है ना, जो भी हमारा एंटासिड है, क्या उन्हें बोला जाता है, एंटासिड हो गया, ये हो गया, तो ये बेकिंग सोडा है ना, पच नहीं रहा है तो बेकिंग सोडा, इंडाइजेशन हो गया, जो कि हमारा है ना इनो वगैरह, मार्केट में क्या इनो वगैरह फेमस है, तो ये सब में पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट टू डिजीजेस दैट विल सी, दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्या है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन? प्रोटीन एनर्जी का मतलब क्या है, प्रोटीन का इनटेक अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है, जिसके कारण बॉडी में एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो माल न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। या फिर अगर प्रोटीन ले भी ले रहे हैं, अगर बाकी इनटेक कम है, तो बाकी डाइट जो ना, तो जैसे कि फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, तीन चीज होता है हमारे बॉडी में जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और प्रोटीन, है ना। तो फिर यही उससे रिलेटेड है जो हमारे, तो सबसे पहले ये जान लीजिए ये कहाँ होता है, पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जनरली जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, तो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, ये सब में ज़्यादा देखने को मिलता है। जब ड्राउट हो जाता है ना, सूखा पड़ जाता है, फिर अकाल आ जाता है, फेमाइन है ना, क्रॉप्स वगैरह मरने लगते हैं, लॉस ऑफ है ना, जो भी क्रॉप्स वगैरह होता है वो हो जाता है ना, तो क्रॉप्स कम हो गया तो रेनफॉल कम हो जाता है, क्या होगा, रेनफॉल कम हो गया, क्रॉप्स का कल्टीवेशन कम हो जाता है, जिसके कारण कि बहुत खाने वगैरह में दिक्कत हो जाती है ना। पॉलिटिक्स से रिलेटेड भी हो सकता है, जो भी दिक्कत आ जाएगा, वॉर वगैरह हो रहा है, ठीक है, वॉर से रिलेटेड है ना, तो उसके कारण भी जो लोगों में प्रॉब्लम आ सकती है, दे कैन बी डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स एंड डिक्रीज इन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द क्रॉप्स, तो उसके कारण भी ये एनर्जी वाला लॉस हमें दिखेगा। क्या, कौन सा एनर्जी, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। 1985 का एग्जाम्पल दिया हुआ याद कर सकते हैं, एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में ये आपका मेंशन्ड है, ठीक है। तो बांग्लादेश वगैरह में हुआ था, इथोपिया में हुआ था, याद रखना है, जिसके कारण कि सीवियर ड्रॉट आ गया था। चलिए फिर क्या है, तो ड्रॉट तो नेचुरल कैमिटी है, और हमारा वॉर क्या है, बाहर वॉर तो कौन है, मैन मेड है, ये कैसा है, मैन मेड। ड्रॉट वगैरह कैसा है, ये तो भाई नेचुरल है, कैसा है, नेचुरल कैलामिटी है, ठीक है। तो इसके कारण दोनों से आ सकता है, तो आया हुआ है 1985 में। पीएम क्या, प्रोटीन एनर्जी फैट, मेनली इन्फेंट और चिल्ड्रन में ही दिया देखा जाता है। दो तरह का जो डिसऑर्डर देखने को मिला है, दैट इज मेरास्मस एंड क्वाशिरकोर, तो ये दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है मेरास्मस, जो मोस्टली जो मेरास्मस होता है एकदम हड्डी वड्डी ऐसा दिखने लगता है, देखिए बच्चा कैसा दिख रहा है, इस तरह का एकदम हड्डी, रिब केज पूरा हड्डी पूरा दिखने लगा, पूरा सूखा, लेग बोन है, हैंड के बोन सब कुछ दिख रहा है, तो ये पूरा एकदम, इट विल रिजल्ट इन द एक्सट्रीम लॉस ऑफ द बॉडी एंड द थिनिंग ऑफ द लिम्स, है ना, जिसके कारण स्किन ड्राई, थिन एंड व्रिंकल्ड होने लगता है। तो ये क्यों होता है, ड्यूटी डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरी, है ना, प्रोटीन्स के डिफिशियंसी के कारण एकदम होता है। तो जनरली लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल से कम बच्चे वगैरह में उनमें देखने को मिलता है, और मदर्स मिल्क जो होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है ना अदर फूड्स में, अदर फूड से रिप्लेस कर दिया, तो ये दोनों प्रोटीन और कैलोरी, है ना, प्रोटीन हो गया, अदर कैलोरिक वैल्यू मतलब कि फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो ये सबका एकदम खाना के कमी हो गया, क्या हो गया, सारा खाना की पूरा कमी हो गया, पूरा खाना की कमी हो गया, जिसके कारण कि ये प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे कि क्वासिरकोर होता है, वो क्या होता है, लो प्रोटीन डाइट होता है मेनली, और मैरास्मस में क्या होता है कि पूरा एकदम कुछ भी प्रोटीन तो कम है ही, फैट में भी फैट के जो जरूरत है, फैट भी कम हो गया, और कार्बोहाइड्रेट भी कम हो गया, फैट भी कम हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी कम हो गया, और प्रोटीन भी कम हो गया, तो प्रोटीन भी कम हो गया, तो ऑल थ्री, है ना, ऑल थ्री सब कुछ एकदम डाउन हो गया, जिसका इनटेक एकदम कम हो गया, जिसके कारण कि मैरास्मस देखने को मिलता है। जनरली लेस देन 1 ईयर, क्या होता है, लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। और इट कैन ऑल्सो बी सीन, है ना, अगर सेकंड प्रेगनेंसी है तो दूसरा चाइल्ड अगर यंग है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, न्यूट्रिशन का डिफिकल्टी हो सकता है।
ठीक है। तो मैरास्मस में याद रखना है कि जो प्रोटीन का डिफिशियंसी बहुत हो जाता है, तो जिसके कारण ग्रोथ और टिश्यू रिप्लेसमेंट वगैरह सब कुछ नहीं हो पाता है ना। तो ग्रोथ एंड रिपेयर हैम्पर हो जाता है ना। बॉडी का वेट वगैरह तो घटता ही है ना, ब्रेन का डेवलपमेंट में भी घट जाता है ना। मेंटल डिफिकल्टीज, मेंटल प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिलता है। तो ये हमारे मैरास्मस में हो जाए। मैरास्मस में एकदम, और क्वाशियोर दोनों में डिफरेंस भी याद करना है कि मैरास्मस एकदम समझो कि एकदम मरे हुए हालत जैसा हो गया, एकदम पूरा हड्डी दिख रहा है, ये हो रहा है ना। बट क्वाशियोर में क्या होता है कि थोड़ा सा खाना, प्रोटीन का तो डिफिशियंसी है ही, है ना। लो प्रोटीन डाइट तो है ही, बट उसके अलावा जो फैट हो जाता है ना, फैट और कार्बोहाइड्रेट, है ना, वो सब का थोड़ा बहुत इनटेक हो रहा है। क्या हो रहा है? फैट और कार्बोहाइड्रेट, है ना। फैट और कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा बहुत इनटेक हो रहा है। बट जो प्रोटीन हो रहा है, प्रोटीन का तो एकदम घट गया। क्या हो गया? प्रोटीन एकदम घट गया। तो हड्डी वड्डी थोड़ा बहुत वगैरह तो दिखेगा ही है ना, बट जो फैट और वो सब के एक्यूमुलेशन के कारण जो ये बेली हो जाता है ना, पॉट बेली, तो इसे पॉट बेली दिखता है। क्या होता है इसमें? पॉट बेली ना। तो ये डिफ्रेंसिएशन बाहर से देख के ये पहचान सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए याद रखना क्या होता है, दिस सम फैट, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, सम फैट इज स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन, है ना। तो जिसके कारण कि एडिमा और स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स दिखने को मिलता है। ठीक है। और वेस्टिंग ऑफ मसल्स वगैरह ये सब तो दिखने को मिलेगा ही। प्रोटीन की कमी के कारण वेस्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, है ना, फिलेरिया ग्रोथ एंड ब्रेन का डेवलपमेंट, ये सब भी देखने को मिलेगा। तो भाई ड्रॉट ये सब हो जाएगा, फेमाइन, वॉर के समय तो ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। मैरास्मस और क्वाशियोर, मैरास्मस और क्वाशियोर में क्या डिफरेंस याद रखेंगे कि मैरास्मस में सब चीज़ का कमी है भाई। प्रोटीन का तो कमी है ही, क्योंकि हम लोग प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो प्रोटीन का तो कमी है ही, कार्बोहाइड्रेट का कमी है ही, फैट का भी कमी है। बट क्वाशियोर में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का कमी होता है। ठीक है। और थोड़ा बहुत कैलोरी का इंटेक हो जाता है ड्यू टू इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो इस इंटेक के कारण देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ फैट अंडर द स्किन, जिसके कारण की पॉट बेली, है ना, स्टमक है हम लोग का, जो पेट और तोंद दिखने को मिलेगा। ठीक है ना, तोंद थोड़ा बहुत पेट बच्चे को रहेगा ही, बट मैरास्मस में एकदम पेट वगैरह तोंद वोंद कुछ नहीं रहेगा, एकदम हड्डी दिखेगा सब तरफ से। ठीक है। तो ये दोनों के बीच डिफरेंसेस है। फिर एक छोटा सा चीज है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में जान लेना, जो हम लोग खाना वाना वगैरह होता है, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है फूड, सब हीट एनर्जी के फॉर्म में होता है, क्योंकि हीट एनर्जी के फॉर्म में होता है। क्या होता है? हीट एनर्जी। तो ये हम लोग को याद रखना है। हीट एनर्जी, जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, तो जो भी हमारा फॉर्म है वो हीट एनर्जी के रूप में होता है। तो हीट एनर्जी को नापने के लिए कोई पैमाना बनाना होगा। तो साइंटिस्ट लोगों ने कैलोरी या फिर किलो कैलोरी ऐसा चीज बनाया है। तो ये टर्म बहुत सुने होंगे, इतना कैलोरी खाना चाहिए ना, अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना 2000 से 2500 के आसपास, इतना अप्रोक्सीमेटली इतना होता है ना, किलो कैलोरी खाना खाना चाहिए। तो ये सब क्या होता है? बोलते हैं कि इसमें ज़्यादा कैलोरी है, इसमें कम है, किसमें ज़्यादा है। तो व्हाट इज़ कैलोरी एंड व्हाट इज़ किलो कैलोरी, है ना। कैलोरी का मतलब होता है कि जो भी energy required, right, to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade. सपोज 1 ग्राम ऑफ वाटर लिए बाय मास इतना, और उसको हीट किया जा रहा है, तो हीट करने में जितना उसका जो टेम्परेचर, जो पानी जो का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे ऊपर होगा, कितना एनर्जी लगेगा, कितना हीट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो जो हीट जो रिक्वायर्ड है, हीट को ही क्या बोल दिया जाता है? कैलोरी। तो ये अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर है, 1 ग्राम वाटर, ठीक है, तो ऐसे याद रखना, 1 ग्राम वाटर को हीट करेंगे ताकि 1 ग्राम ऑफ वाटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो जाए, तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, तो उसे 1 कैलोरी कहा जाएगा। क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी तो बहुत छोटा यूनिट हो गया, तो ये एकदम नापने में बहुत दिक्कत होगा, प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए लोगों ने फिर किलो कैलोरी बना दिया। किलो कैलोरी मतलब कि 1000 ग्राम पानी, है ना। तो 1000 ग्राम पानी जो ले लो, 1000 ग्राम पानी को पूरा ऐसे हीट करने में, 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करने में जितना एनर्जी लगेगा, दैट विल बी कॉल्ड एज 1 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 किलो कैलोरी। तो ये याद रखना है। तो एक हजार ग्राम, है ना, 1000 ग्राम मतलब कि 1 केजी वाटर, 1 केजी वाटर को हीट करेंगे जिस ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए,
तो जो जितना एनर्जी लग रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज 1 किलो कैलोरी। ठीक है, तो ये डिफरेंस दोनों के बीच आ गया। तो साइंटिस्ट लोगों ने 1 किलो कैलोरी वगैरह है ना को यूज करने के लिए बड़ा वर्ड भी दे दिया, एक कैलोरी सिंपल बोल दिया, बट कैपिटल सी क्या होगा, कैपिटल होगा, याद रखना, सी कैपिटल होगा और जूल में जे कैपिटल होगा। तो कैलोरी को जनरली रेफर करने के लिए जो हमारा जो न्यूट्रिशन लोग डाइटिशियन वगैरह है, तो ये सब टर्म भी यूज करते हैं, याद रखना। सिंपल कैपिटल कैलोरी अगर लिखा रहा है, सी कैपिटल है, तो इसका रिप्रेजेंट विल जनरली रिफर एज 1 किलो कैलोरी। तो यानी कि 1 किलो कैलोरी अगर लिखा हुआ है के, है ना, के स्मॉल है, 1 किलो कैलोरी, है ना। तो बड़ा वाला सी है ना, कंफ्यूज नहीं करना है, क्या है बड़ा वाला सी, और तो इस तरह का भी लिखा रहता है, या फिर और जूल बड़ा वाला जे। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। अदरवाइज क्या होगा कि 1000 छोटा वाला कैलोरी CAL है ना, 1000 जनरली क्या होगा, 1000 CAL कैलोरी, 1000 CAL, एक मिनट मैं वापस से लिखता हूँ क्लियरली, 1000 जो होगा CAL इज इक्वल टू कितना होगा, 1 स्मॉल के और AL। तो ये यूनिट वाला तो ये तो इतना ही होगा ना, जो यूनिट के फॉर्म में है, जो ये तो लिखाएगा है। बट अगर साइंटिस्ट जो है ना, जो डाइटिशियन वगैरह होते हैं ना, जो डाइटिशियन होंगे, न्यूट्रिशन होंगे, तो ये सब इस तरह का चीज़ को यूज़ करते हैं। क्या बोलते हैं कि 1 किलो कैलोरी को है ना स्कैल में किलो कैलोरी भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जनरल नॉलेज की चीज़ याद रखिएगा। और जो हमारा अमाउंट ऑफ हीट है तो 2 तरह का बांट दिया गया, क्या बोल दिया, 2 तरह का नाम दे दिया। एक तो क्या बोला कि जो ग्रॉस कैलोरिफिक या फिर ग्रॉस एनर्जी वैल्यू बोला है, और दूसरे को क्या बोला है, फिजियोलॉजिक या फिर वैल्यू ऑफ द फूड। तो 2 चीज़ दे दिया। ठीक है, ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू और फिजियोलॉजिक वैल्यू। तो ग्रॉस और फिजियोलॉजिक में क्या हो रहा है, जो हम लोग खाना खाते हैं ना, वो उसको एक्चुअल में फिजियोलॉजिक वैल्यू ऑफ द फूड कहा जाता है। जो साइंटिस्ट लोग जो करते हैं एक्सपेरिमेंट, जो उससे जितना हीट आया, जो हम लोग पढ़े, जो एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके कारण जो हीट आया वो ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू कहा जाएगा। तो वो एक्सपेरिमेंट किस में करते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर एक क्लोज मेटल चेम्बर होता है, जो कि एकदम इट विल बी कम्प्लीटली फिल्ड विथ ऑक्सीजन, है हमारा हम लोग जो एयर वगैरह या जो भी कुछ भी खाना वगैरह सबका जो फिज हो रहा है हम लोग के बॉडी के अंदर, उसमें कंप्लीट ऑक्सीजन में तो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उसमें थोड़ा तो बहुत हल्का फुल्का माइनर चेंजेस आ जाता है। तो क्या चेंजेस है वो हमारे वैल्यू वगैरह याद रखना है। ये एनसीईआरटी में आपका वैल्यूज दिया हुआ है, तो ये आपको एनसीईआरटी दिया हुआ, तो इसीलिए वैल्यूज इसके इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूज को याद रखना है। ठीक है, इट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट बेसिस, तो याद रखना है। ठीक है, तो ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू, ये हो गया, ठीक है ना। फिजियोलॉजिक वैल्यू ये हो गया। फिजियोलॉजिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट कितना करेगा, है ना, 1 किलो कैलोरी, है ना, और फैट कितना करेगा, 9 किलो कैलोरी, और ये प्रोटीन करेगा 4 किलो कैलोरी। तो फैट सबसे ज़्यादा क्या करता है, फैट, है ना, फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है अगर बात किया जाए कैलोरी वाइज। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में, है ना, जो भी थोड़ा बहुत जो हीट कंबशन होगा ना, जो एक्चुअल कंबशन हो रहा है बॉम्ब कैलोरीमीटर में, किसमें हो रहा है, बॉम्ब कैलोरीमीटर, है ना, कैलोरी मीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर वो किया जा रहा है ना, इस तरह इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन फिल रहता है। तो ऑक्सीजन के अंदर में ये अगर इतना केजी वगैरह डाल के कार्बोहाइड्रेट को चेक किया जाएगा कितना कमर्शियल रिलीज कर रहा है, तब उससे ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू कहा जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का 4.1 होता है, फैट का कितना होता है 9.45, तो थोड़ा सा इसका ज़्यादा होगा, प्रोटीन का 5.65, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू फिजियोलॉजी। तो ये सब चीज़ें कुछ याद रखना है, डाटा वाइज डाटा चीज़ इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है 4.1, फैट का सबसे ज़्यादा होता है 9.45, प्रोटीन का कितना होता है 5.65, फिजियोलॉजिक वैल्यू कितना होता है कार्बोहाइड्रेट का 4, फैट का कितना होता है 9, प्रोटीन का क्या होता है
4। ठीक है, तो फैट का सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिक और ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्यूजडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर है ना नॉलेजेबल लगा होगा, समझ में आया होगा, है ना। याद कीजिए, समझिए उनको डिजीजेस के बारे में, है ना, स्पेशली जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इन्फेक्शंस हो गया, जॉन्डिस हो गया, डायरिया हो गया, इंडाइजेशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, अनप्रोटीन एनर्जी मेटाबॉलिज्म भी अलग से दिया हुआ है ना, कुछ कुछ बुक में नहीं है तो वो पीछे में भी दिया हुआ है, नए वाले एनसीईआरटी में आगे दिया हुआ है, तो याद रखना है। डिसऑर्डर्स में मैरास्मस और क्वाशियोरकोर को भी इंक्लूड करना है। मैरास्मस और क्वाशियोरकोर में कैसे याद रखना है, मैरास्मस एकदम मरा हुआ मरा जैसा बॉडी है, और क्वाशियोरकोर में क्या होता है, थोड़ा बहुत फैट वगैरह एक्यूमुलेट हो जाता है, तो स्टमक एकदम पॉट बेली जैसा दिखता है, क्योंकि उसके अंदर कैलोरी इनटेक होता है फैट या कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से। तो ये दो प्रोटीन एनर्जी मेटाबॉलिज्म एकदम अच्छे से याद रखिएगा, मैरास्मस और क्वाशियोरकोर। चलिए, नमस्कार, प्रणाम सब लोगों को, थैंक यू। प्लीज शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डॉक्टर उज्ज्वल बायोलॉजी क्लासेस। बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा टू गेट फर्दर notifications regarding our channel and updates of various other topics of the chapters. Thank you so much.